Uh, Good afternoon, everyone. Let's start with the class. In the last class, we discussed about that what is the nature of entrepreneurship. We discussed about that. In today's class, we are going to understand that what are the various factors which influencing entrepreneurship. And today we are going to do the story. In the last class, I said that we are going to discuss about Mamaearth. In today's class, we are going to understand about the Fool.com or Fool company. ठीक है, PHOOL, Fool company, how it is started and what is the initiative and who taken this initiative and what is the reason behind starting this enterprise. We'll discuss about the success story of Fool company, right? So before that, let's start with the topic. What are the various factors which influencing entrepreneurship? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, सो द फर्स्ट फैक्टर इज एजुकेशनल. फर्स्ट फैक्टर इज एजुकेशनल फैक्टर. एजुकेशनल फैक्टर. एजुकेशनल फैक्टर. So, do you know what is the difference between literacy and education? Literacy और education में क्या difference है? आप लोग में से किसी को भी पता है इसके बारे में? Any one of you want to tell me what is the difference between education? So, education और literacy में क्या? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. एजुकेशन और लिटरेसी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि लिटरेसी इज समथिंग विच इज इन विच वी आर एबल टू रीड एंड वी आर एबल टू राइट समथिंग. वी आर एबल टू राइट इन हिंदी और इन इंग्लिश. दैट दोस पर्सन्स आर नोन एज लिटरेट. But the education, it is not only about the literacy, but your overall mind changes, your skill, your behavior toward the people. So that will show that you are educated. So here in the educational की अगर हम बात करें, so एजुकेशनल पैटर्न जो है वो आए दिन हमारे इंडिया में भी चेंज हो रहा है. एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नए चेंजेस लेकर आते हैं. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन हमें बताता है कि हम किस तरीके से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करें. हमारा नॉलेज, हमारा एजुकेशन, हमारा स्किल जो है, basically that is nowadays inspiring the young minds and they want to become entrepreneurs. वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं. ये यंग माइंड के मतलब अंदर खुद इंस्पिरेशन है. ठीक है, सो एजुकेशन उनके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. दे डोंट वांट टू बिकम एम्प्लॉय ओनली बट दे वांट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अदर्स. सो एजुकेशन विल गिव यू डायरेक्शन दैट विच बिजनेस यू कैन स्टार्ट. ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू बिकम मोर क्रिएटिव. दे विल हेल्प यू टू डिलीवर द आइडियाज and through which you are able to start your business. And even in the, if we are talking about India, there are so many institutes which is basically started for providing education for the entrepreneurship. जैसे कि आपका EDII, Entrepreneurship Development Institute of India, IIE, Indian Institute of Entrepreneurship. So these are the institutes which is basically started for providing the education in entrepreneurship. They are even providing the short-term training programs they are organizing. They are giving so many workshops that how you can start a business. Okay, clear हो गया सबको? Okay. So even there are so many nowadays, even the government are also realized that the young people are basically changes their direction. They don't want to do job for 20-30K and monthly salary के लिए जॉब करना. उनसे ज्यादा उनके लिए बेहतर है एंटरप्रेन्योर्स बनना, which is helpful for economic development as well. So यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं. और EDII that is in गुजरात, ठीक है, और IIE is in गुवाहाटी. So ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए मोटिवेट करते हैं. They are providing you the course and education for entrepreneurship only. Okay, and even they are also providing the workshop, training programs. They are also giving you option that from where you will collect the fund. मतलब पैसे कहाँ से जुगाड़ कर सकते हो, कहाँ से फंड जो है वो ले सकते हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज, ये जो है दिस इज नोन एज एजुकेशनल. वी कैन से दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, एजुकेशन, which is basically affecting the entrepreneurship. I guess this point is clear to everyone.
This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which is giving you direction. There are multiple options from where we can basically skill ourselves. We'll get the ideas. There are the institutes. So in short, that is inspiring the young people, and the young peoples are already अभी के टाइम पे एजुकेशन अगर सिस्टम देखे तो यंग लोग पहले से ही, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. ट्रू और नॉट? यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस, राइट? Yes, ma'am. Yes. डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, इसी ने कहीं ना कहीं नेसेसिटी को रियलाइज करा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स शुरू किए हैं. एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, आपके बहुत सारे कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हुआ है एज एजुकेशनल पार्ट. समझ में आ रही है बात? सो दिस इज अ वी कैन से दैट इट इज अ एजुकेशनल फैक्टर. नेक्स्ट वन इज राइट, नेक्स्ट one is legal. Next one is legal. Okay, what is the meaning of legal factors? लीगल का मतलब क्या होता है? वी कैन से लॉ, जो कानून जिसको हम कहते हैं लॉ. जैसे जीएसटी आया, सो दैट टोटली चेंज द सिनेरियो ऑफ द रिटेलर्स. ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स किस तरीके से प्रोडक्ट सेल करना, जीएसटी नंबर्स प्रोवाइड करने किया जाने लगा. So the whole scenario of retailing is changed because of the GST introduction. So GST is, we can say it is an act or law which is made by the government and it is implemented in all over the India, right? So legal का मतलब यहाँ पर है कि the law must protect the weak till the time they need it. इस लाइन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं कोई एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, तो वी ऑल नोज दैट इन मार्केट देयर इज सो मेनी कॉम्पिटिटर. बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं. तो मेरे लिए काफी दिक्कत हो सकता है अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और मेरा जो है वो बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आई कैन नॉट एबल टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर्स. तो इसके लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके. और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिजर्व कर दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो लीगल टर्म में भी कई बार गवर्नमेंट जो है दे आर प्रोटेक्टिंग द स्मॉल एंटरप्राइजेस so that we are able to sustain in the market. It is a step, it is a positive step which is taken by the government for increasing the profit, or we can say for surviving of the entrepreneurship. यानी entrepreneurship जो business startup शुरू हो रहा है वो चलता रहे, survive कर पाए. कॉम्पिटिटर्स जो है वो मोनोपोली राइट को क्रिएट ना कर पाए. छोटे छोटे मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स इन द स्मॉल सेक्टर दे हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस. अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स है, अगर उनको लीगली प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. ठीक है, because we cannot able to compete with the large scale manufacturer. So there are some reservation which I already told you. There are some reservation of some products or items which is given to the only small industry, that they are only produce these products. ठीक है, so when I will teach you MSME, medium small, micro small and medium enterprises, when we'll learn. ठीक है, तो ऐसे उस एंटरप्राइज में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सा सेक्टर जो है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व है. ठीक है, तो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, MSME जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दीज आर द फैक्टर्स समहाउ व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग द एंटरप्रेन्योरशिप in a positive way as well as in the negative way. But in the legal term, whatever we talk, that is totally the positive term that is taken by the steps taken by the government for the protection of the small businesses. Clear ho gaya sabko? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's move toward the next point, that is infrastructure. So what is the meaning of infrastructure? The road, transport, transportation system, warehousing, electricity, water facilities, ठीक है, buildings, these all are the part of the infrastructure. इसको क्या बोलते हैं? Infrastructure. ठीक है, सो लैंड एंड फैक्ट्री शेड्स एट कंसेशनल रेट्स. मतलब कई बार गवर्नमेंट भी कई जगह पे लैंड जो है वो आपको कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने बिजनेस को वहां पर सेटअप कर पाए.
ठीक है. So there are some reservation of the areas, land areas, which is given to the small industries, as well as there are some system of SEZ, special economic zone भी है जो गवर्नमेंट ने उस वहां के एरिया पर अगर आपने अपना फैक्ट्री सेटअप किया या बिजनेस शुरू किया तो आपको वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ठीक है. So land and factory sheds जो है that is provided by the government on concessional rate, adequate supply of the water, adequate supply of the electricity and the other resources of energy, transportation facilities, availability of the raw material, physical facilities should be provided by the government to facilitate setting up the new enterprises. So these facilities should be provided by the government so that they are able to do the operations in the enterprises or they are able to run their business properly. So I guess this point is also clear. See, if there is a no infrastructure, just imagine that you establish one industry. आपने एक industry को set up किया और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम नहीं है. आर यू एबल टू रन द मशीनरीज? आर यू एबल टू रन द मशीनरीज? नो मैम, रन नहीं करेगा. मशीनरी रन कर पाइएगा? अगर मान लीजिए कि आपने एक शू इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, शूज बना रहे हो और वहां पर आपको लेदर वगैरह की रिक्वायरमेंट है क्योंकि रैक्सीन और लेदर्स की आर्टिफिशियल लेदर की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो क्या आप प्रोडक्ट को बना पाओगे? नो मैम, बनेगा ही नहीं. So in short, for regular operation and for continuing the whole बोल सकते हैं industry, we required so many things which is important for surviving. Like raw material चाहिए ही चाहिए, transportation facility चाहिए ही चाहिए. अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको दूसरी जगह सप्लाई भी तो करेंगे, तभी तो वो सेल होगा. ट्रू. उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ही, है ना, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कोई एरिया चाहिए जहां पर आप अपने बिजनेस को सेटअप कर पाए. क्लियर है? तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है. तो एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और कुछ एरियाज को उन्होंने रिजर्व कर लिया है और वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और स्मॉल बिजनेस को या एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, मतलब नॉट एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली फॉर स्टार्टअप्स को वो लैंड कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करते हैं. तो एक तरीके का दिस इज द मोटिवेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट to the entrepreneurs that they are able to start their business and they will run it in the effective and efficient way. So I guess this point is also clear. This point is clear. Yes ma'am. Okay. So the first point is educational, like how the education is affecting the entrepreneurs. Obviously there are multiple institutes, the courses are added in the books of the colleges, school levels, ठीक है, that is motivating the young mind to become the entrepreneurs. कितना साल का कोर्स होता है मैम? एक मिनट, please don't interrupt when I am speaking. So it is a way, we can say that it is a way to giving the direction to the young people, young minds. ठीक है. The second point is the legal. So this is the responsibility of government to provide the legal protection to the small scale enterprises, because if they will not do that, they are not able to sustain and they are not able to compete with the large scale industries. The third point which I discussed, that is infrastructure, the requirement of the input for providing output, right? So हमें proper infrastructure की requirement है, adequate water होना चाहिए, electricity होना चाहिए, ताकि हम अपने day to day activity को properly run कर पाए, timely अपने काम को पूरा करें, अपने product को properly sell कर पाए. If that is a industrial base, if you are setting up the business, your business is going on in the proper way. ठीक है. So these 3 points which I discussed, these are the factors. There are so many factors. So एक बार मैंने इन तीनों पॉइंट को रिवाइज कर लिया, फिर वो 3 पॉइंट में आगे बढ़ूंगी, फिर उस तीनों पॉइंट को रिवाइज करूंगी. यस, कौन बोल रहा था, कौन बच्चा? ये होते ना 2 years का. Same, there is a course which is provided for 2 years. So that is a, we can say, post graduation diploma in entrepreneurship, as well as there are some certification courses also available that you can do for the 6 month, 1 year,
right? So there are the courses that is not more than 2 or 3 years, 2 या 3 साल का आपके पास कोर्स है. उसके अलावा they are also giving you, आपको कुछ लाइव वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, like they will provide you the proper system that how you can run the business. ठीक है, आपको वो ट्रेनिंग देंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम देंगे, समझ रहे हो? क्लियर हो गई बात? Yes, So ma'am. we can do the diploma courses from EDII as well. Okay, but before that you have to give the exam. So everyone knows that the finance is a major resource which is required to start the business. बिना पैसे के तो हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाना होता है तो we need so many things, chart papers, colors, pencils, multiple things we required for making a small project of our school. So we are going to establish a whole business, so we required fund for that, and in the initial amount जिसको हम कैपिटल कहते हैं, उसके लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होगी. So somehow the governments are provided so many बोल सकते, there are so many banks, they are providing funds to the entrepreneurs, जैसे नाबार्ड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड दे आर बेसिकली स्टार्टिंग वन प्रोजेक्ट स्माइल. ठीक है, तो एक स्माइल उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू वो एंटरप्रेन्योर्स को पैसा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फंड देते हैं. एमएसएमई के थ्रू भी आपको फंड मिल सकता है. सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको लोन की बहुत सारी सुविधा दे रही है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट में भी लोन की सुविधा है, ठीक है, और जहां पर रिपेमेंट का भी आपके पास जो टेन्योर है दैट इज अप टू 10 इयर्स, मतलब 10 साल तक आप लोन चुका सकते हो. सो फ्रॉम गवर्नमेंट साइड दे आर प्रोवाइडिंग यू मल्टीपल ऑप्शन, but so many people are taking the fund from their relative, from their known, from their family members, or somehow if you have the saving amount, अगर आपके पास खुद का भी saving amount है तो you can also utilize it, right? So we understand that the financial में अगर हम बोले तो need हमें पैसे की requirement दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा पड़ती है. पहला तो कि हम जहां पर बिल्डिंग लेते हैं या लैंड लेते हैं वहां पर हमें पैसा तुरंत से एट द टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो इन शॉर्ट अगर समझे तो हमारे पास दो कैपिटल होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल जो हमें स्टार्टिंग में बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और सेकंड हो सकता है एक वर्किंग कैपिटल जो आपके हर दिन की दिनचर्या में जो भी अमाउंट है जो आपको यूटिलाइज करते रहना है, जैसे आपको कभी ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना है, आपको एम्प्लॉइज को पैसा देना है. सो हमें ऑपरेशन के लिए और फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे हमने मशीनरी खरीदा दैट इज फिक्स्ड एसेट, सो उसके लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी. सो जो नीड जो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का शुड बी एडिक्वेटली नीडेड, मतलब जितना जरूरत है उतना हमें चाहिए ही चाहिए. अगर कोई नया एंटरप्राइज को सर्व करना है, ग्रो करना है, तो उनके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है. अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी है, इफ देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट यूटिलाइज योर पोटेंशियल टू ग्रोइंग योर बिजनेस. अपनी पोटेंशियल को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट करना है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कैसे लोगों को अवेयर कराओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो द एडिक्वेट फंड इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फॉर ग्रो एंड फॉर सर्वाइविंग ऑफ एनी न्यू एंटरप्राइजेस, ठीक है. और प्रॉब्लम्स जब ज्यादा एक्यूट हो जाता है, जब आपने जो पैसा है कई बार लोन ले लिया लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया आपने, और आपका पैसा कहीं ना कहीं लॉस में चला गया. सो फाइनेंस के लिए सिर्फ हमें फंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उस फंड को कैसे एलोकेट करना है, उसको कैसे खर्च करना है, कहां कहां लगाना है, कहां कहां इन्वेस्ट करना है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एंटरप्रेन्योर्स. आई बात समझ में? सिर्फ आपको 10 लाख रुपीस मिल गया तो आपका बिजनेस शुरू हो गया, दिस इज नॉट द थिंग. यू हैव टू प्लान दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस रिसोर्स फॉर योर कंपनी, ठीक है. सो फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप. क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Next one is procedural. So if you are starting the business, this is not a one day work कि आज मैंने सोचा कल मैं बिजनेस शुरू करूंगी, कल बिजनेस शुरू हो गया. It is not possible. Yes, it is possible in dream, but it is not possible in reality.
रियलिटी में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आज 3-4 जैसे आप 2-4 बच्चे हो, संदीप, अरमान और अंकित ने सोचा कि चलो मैं बिजनेस शुरू कर दूं तो शुरू हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। बिफोर दैट यू हैव टू प्लान द थिंग। पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा और उसके बाद उस प्लानिंग को एक एक करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसके अंडर में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज नॉट अ वन डे गेम बट इट विल टेक टाइम एंड इट विल टेक यू हैव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ कंपनी और अ बिजनेस। ठीक है, even for in the whole procedure there are multiple hindrances which you are going to face। बहुत सारी रुकावटें आएंगी जो आपको फेस करना पड़ेगा। it can be related with the registration process, it can be related with the fund process, it can be related with the location process, location area कि कहाँ बिजनेस शुरू करें। so you will face multiple problems and hindrances। ठीक है, आपको रुकावटें बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपको मल्टीपल जगह पे गवर्नमेंट के ऑफिसेस पे जाना पड़ेगा, आपको लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इनिशियल स्टेज में कुछ एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी। सो हर एक चीज एक एक करके वी हैव टू गो, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो प्रोसेस को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू स्टार्ट द बिजनेस। फ्रॉम थिंकिंग फ्रॉम हियर and to implementing it is going to take so many steps, right? So procedural and the process is also one of the factor which is affecting the entrepreneurship। clear हो गई बात, समझ में आ गया सबको? everyone? Yes, ठीक है, एंड यू हैव टू फुलफिल सो मेनी लॉज, लीगल लॉज आपको चेक करना पड़ेगा, एक्ट चेक करना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच यू नीड टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड इट इज गोइंग टू डन बाय इन अ process by process or step by step। next one is communication। so it is related with communication। communication का मतलब क्या होता है? that the sending of the message, the interaction of the people, the interaction of the company with the consumers, this is known as communication, where you are delivering the message to the other person, that is communication, right? so जो information gap है, information gap when you are not able to connect with the people, the information gap pushes many entrepreneurial venture toward the extinction। यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैप ने एंटरप्रेन्योरशिप को एकदम खत्म कर दिया, गायब कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया है। ठीक है, unless an entrepreneur known about the market potential, competition in the market, technological and other development, the entrepreneur is not likely to succeed। जरूरी नहीं है कि मुझे मार्केट का आइडिया है, मुझे कंज्यूमर्स का आइडिया है, मुझे टेक्नोलॉजी का आइडिया है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल है, तब भी मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। इट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड, बट टू whom we are going to give that product, to whom we are going to provide that goods or services, that is required to be that is required in short। ठीक है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से अपने टारगेट पीपल की तरफ बहुत जरूरी है होना। ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं किया either with anyone, if with the government, if you are not able to communicate with the consumers, if you are not able to communicate with the employees, so in that situation also your venture is going to be adversely affected। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एंड somehow if you will feel some problem in any of the topic, you are going to communicate with me, you are going to contact me, या फिर you are going to raise this question कि मैम ये प्रॉब्लम है इस टॉपिक में। सो दिस इज बेसिकली डन through the communication, but same thing मानिए कि if you are asking the question and if I am not going to give you reply in that, so it might be possible that after some time your problems will be created more and more। ठीक है, वो बल्क में आपके पास प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बेटर कम्युनिकेशन, बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, सो अगर आपका कम्युनिकेशन एक एंटरप्रेन्योर का अपने बाकी के स्टेक होल्डर से, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में होता है, जैसे आपके गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, एवरीवन कम्स अंडर द स्टेक होल्डर्स। इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद देम प्रॉपरली,
it might be possible that in a long run you are not able to solve your problem, or you are not able to solve the problem of the stakeholders. So somehow it is also going to do the adverse, आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। सो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली आपका होते रहना चाहिए, ठीक है, लोगों के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, अपने कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कह सकते हैं इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सक्सीड, फॉर सक्सेस इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉपरली सबके साथ कम्युनिकेट करके रखना है, ताकि एक नॉलेज ट्रांसफर और नॉलेज जो है वो एक्सचेंज होता रहे। आ रही बात समझ में? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सो अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया ना, तो कम्युनिकेशन गैप बनता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाइएगा, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर प्रॉपर बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप लोग में से कितने हैं जो पेमेंट के लिए गूगल पे यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, या फिर फॉर्म फिल करना होता है तो इंटरनेट का यूटिलाइजेशन करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इट? एंड व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, ma'am. मैं करता I हूँ। guess everyone is using technology nowadays, true? Like you don't want to visit a place, you don't want to take a, बोल सकते हैं, physical form to filling that. You are using the online site or website through which you are filling the form, you are taking the information. Even for the payment purpose, nowadays we are using the UPI, credit card, debit card, true or not? We are using multiple apps. So these are the part of the modern technology, and we are now dependent on the technology as a whole. We are dependent on that. हर एक काम के लिए we are now dependent on our technology. Even if I'm going to travel from one place to another place, I'm going to use Ola, Uber, and the other apps. Why? Because I don't want to walk and I don't want to take the public transport, but I can take that facility. And this is accessible because of the technology. यानी इंटरनेट ने कहीं ना कहीं, टेक्नोलॉजी ने हमें बेसिकली हमारे लाइफ को इतना इजी कर दिया, कन्वीनियंस, टाइम इफिशिएंट इतना कर दिया है कि अब हम इससे बैक नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? मोबाइल यूज करना छोड़ सकते हो? No, ma'am. कभी No, नहीं ma'am. मैम। है, नहीं है, ठीक है। सो वी आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड एंटरप्रेन्योर्स को भी इसी चीज को बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजी इज अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, you can start your business, but if your business is basically based on the traditional outlook, they are based on the traditional techniques, no one is going to basically take the product as well. अगर मैं बोलूं कि आज एक कारवा नाम से अभी रेडियो आया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर मैं आपको 1970s का रेडियो बेचना शुरू करूं तो कितने लोग खरीदेंगे? बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोग, बहुत कम लोग खरीदते है ना? बहुत कम क्या, आई थिंक 1 or 2 इन होल इंडिया आई गेस, और मे बी वो भी खरीदेंगे कि नहीं उसकी भी श्योरिटी नहीं है। और बहुत ज्यादा हुआ तो मान लीजिए 5, 10, 20, 50, मतलब 1000 मान लीजिए, बहुत ज्यादा हुआ तो, है ना? तो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नियर, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम बैक साइड दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स जो भी चीजें, जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, दैट शुड बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जस्ट इमेजिन द ओला वाज स्टार्टेड इन 2010, और उसी समय उनका एक प्रॉपर वेबसाइट था, एंड दे बेसिकली ऑल्सो दे मेक वन ऐप, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन क्यों है? ताकि कंज्यूमर्स आपके साइट को, आपके बिजनेस को प्रॉपरली यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, ठीक है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटर्ड द ह्यूमन लाइफ, एंड वी कैन नॉट बैक ऑफ फ्रॉम दैट, ठीक है। फास्टर मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, मेल, प्रोवाइडिंग गुड्स, होम डिलीवरी सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, एवरीथिंग इज बेसिकली रिवॉल्यूशनाइज्ड बिकॉज ऑफ द technology. Web technology is there. So for implementing or for making any decision by the entrepreneurs, for providing any goods and services to the people, they require to use the modern technology. Clear? सबको आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes. चलिए, next one is there is we can say the size of the business.
that also matters, like what size you are going to start. Like in short, if you are going to establish a small scale business, that is definitely that is of small scale or that is of small size. Okay, so the size of the business is also affecting the other factors as well. Like if you are going to establish big business, large business, in that you required a big area to establish, you required so many people or resources to start the business, you want a proper management team or expert team, so the fund which you require, that is also large. So in short we understand the size of the industry, the size of the production, the size of the business is also one of the factor which is basically affecting the entrepreneurship. Clear ho gaya? Next one is R&D technology, R&D research and development technology. So today the companies are investing a lot of money on R&D. Why? Because these activity R&D is going to tell us that which product we need to sell in the market, कौन सा product हमें market में sell करना चाहिए, कौन सा product जो है आजकल demand है, better version provide करने के लिए, better quality provide करने के लिए we require R&D team, research and development team. ठीक है? So R&D is also affecting the entrepreneurship. Okay, this is also one of the factor, and the one major factor is globalization. So globalization we all knows it is an integration of the economy, world economy को integrate करने का तरीका, it is a globalization. आज घर में बैठे बैठे we are able to take admission in the foreign colleges. घर पे बैठे बैठे we are able to basically give order for the foreign products. So this is happening because of the globalization and thanks to e-commerce for that, and thanks to internet. Okay, which basically connected whole world together. So globalization nowadays it also basically affecting the entrepreneurship, because now your domestic countries people or domestic consumers are not only your consumer, but the foreign consumers are also the part of your business nowadays. So whatever you are designing, you have to keep in your mind that whom you are going to selling your product. So globalization now it is basically, अब ये geographical boundaries वाला जो बाउंडेशन था वो खत्म हो गया, अब कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज है. ठीक है, कंपटीशन बहुत इंटेंस है. अगर आप फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो फॉरेन सेलर भी आपके कंट्री में भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. So if you want to survive in the market, you have to be very much careful and you have to compete with the other company. ठीक है, and in which terms you can compete in the quality manner, that what quality of product you are providing, the delivery manner, that how you are delivering the product, and in the manner of price. So we have to very much careful to compete with the competitors. So these are the factors which is affecting the entrepreneurship. The first one is educational factor, legal factor, infrastructure factor, and then financial factors, then procedural factor, communicational factors, IT, R&D, and the size of the business, as well as the globalization. So these are the factors which is influencing the business both in positive as well as a negative term. Anyone have any doubt in any of the point of factors? किसी को भी कोई doubt है factors पे? No, ma'am. Okay. The success story of our this company Fool. ठीक है, so I'm sharing the screen. चारकोल कंपनी, चारकोल बनाती है ना मैम? No, it's not making charcoal, but it is making agarbatti. Yes, And yes. how this idea was generated, let's start to understand this story. Fool agarbatti, right? So fool का मतलब क्या होता है? In English that is flower. ठीक है, ब्यूटी, जो फ्लावर हम सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं? फॉर वर्शिपिंग. ट्रू, पूजा करने के लिए हम फूल का यूज करते हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए हम फूल का यूज करते हैं. सो दिस अगरबत्ती की जो, अगर मैं ये अगरबत्ती जो है, इट इज मेड फ्रॉम दूज फ्लावर्स, यानी फ्लावर के द्वारा इस अगरबत्ती को बनाया जाता है. अब ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ और इसका जो इनके जो ओनर है वो कौन है? तो अंकित अग्रवाल, ही इज सीईओ ऑफ फूल कंपनी. ठीक है, एंड हाउ दिस आइडिया इज जनरेटेड, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड.
तो यहाँ पर जो इसकी स्टोरी है, इट इज स्टार्टेड विद कि एक दिन मकर संक्रांति, जो अभी हाल फिलहाल में जनवरी में जो हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया, तो उसी मकर संक्रांति की बात हो रही है कि इट वाज द डे ऑफ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति था, एक मिनट, मकर संक्रांति था, और वहां पर आपके जो अंकित अग्रवाल थे वो गंगा के पास बैठे हुए थे, गंगा नदी के पास बैठे हुए थे, और यहाँ पर उन्होंने मतलब वहां पर वो देख रहे थे किस तरीके से लोग मकर संक्रांति वाले दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। ठीक है, लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, आ रही बात समझ में। तो उस दिन वो ठंडा का टाइम था, ठंड का टाइम था, और वो 2015 की बात है। ठीक है, वो उनके फ्रेंड जो है, अंकित अग्रवाल के फ्रेंड जो है, वो कानपुर में उनके पास वहां पर आए और घाट रिवर गंगा के पास वो देखना, वो चाहते थे, देखना पसंद, मतलब देखना चाहते थे इन शॉर्ट। इट वाज द डे ऑफ मकर संक्रांति एंड एक एंशिएंट इंडियन फेस्टिवल को उस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। हर एक कोई गंगा नदी में स्नान कर रहा था। 2015 की बात है। अंकित अग्रवाल जो थे, उनके घर में उनके एक फ्रेंड आए जिनको जाना था कहाँ पर, गंगा नदी को देखना था उनको। ठीक है, तो कानपुर एक्सप्रेस्ड एज home in the कानपुर and expressed an interest to see the ghats of river गंगा। तो मतलब अंकित अग्रवाल वहां बैठे नहीं थे, it was the story started from that। तो उनके फ्रेंड आए, उसके बाद वो लोग वहां घाट के पास बैठ गए। ठीक है, वो दोनों, उनमें से उनके फ्रेंड को मन था कि वो गंगा घाट का दर्शन करे, देखें, तो वो दोनों जाकर गंगा घाट के पास बैठ गए। अब वहां पर उन्होंने क्या देखा कि पीपल वर परफॉर्मिंग द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार लोग कर रहे थे। वहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो पानी पी रहे थे, गंगा नदी का पानी पी रहे थे। बहुत लोग उसको बॉटल में भर के ले जा रहे थे। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो गंगा नदी के पानी, मतलब गंगा जो वाटर है, जल जो है, उसको अपने घर पे रखते होंगे पूजा के रैक में और पूजा करते हैं। सो गंगा नदी एक पवित्र नदी माना जाता है, हमारे इंडिया में उसकी पूजा होती है, और ये गंगा नदी की स्टोरी है, वहीं पर ये शुरू हुई। तो वहां पर उन लोगों ने क्या देखा, मतलब दोनों फ्रेंड्स ने क्या क्या चीजें नोटिस की कि लोग पानी पी रहे हैं, लोग वहां बॉटल में भर रहे हैं पानी को, और बल्कि वो दिख रहा है कि जो पानी है दैट इज नॉट वेरी मच क्लियर, मतलब पानी जो है वो डर्टी है, लेकिन लोग फिर भी उसको प्रॉपरली उसको मतलब यूज करना चाहते हैं और उसको बॉटल जो है उसका भर रहे हैं पानी को। ठीक है, एंड उसके अलावा अब ये चीजें देखो, आप देख सकते हो कि ये उस समय का सिचुएशन था गंगा नदी का, मतलब एक ऐसा उस समय पूरा का पूरा जो पानी था उसमें उन्होंने क्या चीज नोटिस किया कि बहुत ज्यादा फ्लावर जो है वो पानी में किसी ने डिस्चार्ज कर दिया है। ठीक है, पानी में अभी भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि कितना ज्यादा यहाँ पर फ्लावर्स हैं जो डिस्चार्ज हैं वाटर बॉडी में। ठीक है, नो डाउट कि रिवर को गंदा करना, रिवर को डर्टी करने में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज का भी हाथ है। ठीक है, फैक्ट्रीज जो है वो टॉक्सिक मटेरियल को पानी में बहा देती है, वेस्ट को बहा देती है, और जिसकी वजह से वो वाटर अनसुटेबल हो जाता है लोगों के यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, लोगों के यूज करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए तो ये है ही प्रॉब्लम, साथ साथ में मेरीन लाइफ जो मतलब मछली है, जो वाटर बॉडीज में जिनका घर है, उनके लिए भी काफी ज्यादा ये चीजें नुकसानदायक है। तो ये सारी चीजों को तो वो नोटिस कर रहे थे अंकित अग्रवाल कि यहाँ पर फैक्ट्री, सेवर्स जो हर जगह पे डंप हो रही हैं चीजें रिवर में, तो ये तो रीजन है ही। उसके अलावा ही वाज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर बॉडीज, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फैक्ट्रीज, व्हाई दे आर डिस्चार्जिंग एंड ऑल। सो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द वाटर बॉडीज विथ हिज फ्रेंड जाकुब। जाकुब के साथ उन्होंने ये सारी चीजें अपना डिस्कस करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही सॉ, उन्होंने क्या चीजों को नोटिस किया कि आसपास में जो मंदिर है, उस मंदिर में चढ़ावा आता है, फ्लावर आता है, वो भी डर्टी वाटर, मतलब जो पानी है में है उसमें बहा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्लावर्स जो है दैट इज ऑल्सो डंप्ड फ्रॉम द टेम्पल नियर बाय द वाटर बॉडी, एंड ये कहीं ना कहीं इस पानी को को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए ही अंडरस्टैंड, और आपको पता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर की खेती होती है,
और जब भी आप मान लीजिए कि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जो कि एक केमिकल है, हम इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, हम विडिसाइड का यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं किस चीज के लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज देखा कि ये जो पानी में जो ये फ्लावर है, इसमें जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह है, वो भी पानी को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दूस फ्लावर्स, यानी उन फ्लावर को मैं कैसे यूटिलाइज करूं कि उस फ्लावर को वेस्ट उस पानी में बहाना बंद हो जाए। सो ही स्टार्टेड दिस, ही टेक दैट आइडिया टू स्टार्टिंग द एसेंस स्टिक, जिसको हम कहते हैं अगरबत्ती, थ्रू यूजिंग दीज फ्लावर्स, जो फ्लावर हमें मंदिर से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इन स्टार्टिंग उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मंदिर आपकी भक्ति की जगह है, वर्शिप की जगह है, जहां से पंडित हो या वहां पर जो प्रिस्ट हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वर्शिप करते हैं, उन्होंने उन्हें फ्लावर्स देने से भी मना कर दिया, बिकॉज उनका कहना था कि ये भगवान की चीज है और इसको हम पानी में ही अर्पित करना चाहेंगे, हम आपको इसको देना नहीं चाहेंगे। तो उनको काफी दिक्कतें, मुश्किल भी हुई लोगों को मनाने में। और ये इन्होंने जो फ्लावर्स का कलेक्शन शुरू किया, इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द टेम्पल, बट दे स्टार्टेड टेकिंग दैट फ्रॉम द मॉस्क्यूज एज वेल। आ रही बात समझ में? सो आफ्टर थिंकिंग अबाउट द, बोल सकते हैं कि पानी को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, इकोलॉजिकल सिस्टम को कैसे बैलेंस किया जाए, और कैसे कुछ कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, कैसे इस वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो, इसी इन सारी चीजों ने कहीं ना कहीं फूल कंपनी को बेसिकली बनाने के लिए इंस्पायर किया अंकित अग्रवाल को। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गए सबको सारे पॉइंट? यस मैम। सो ये जो जर्नी है, अभी अगर हम बात करें, सो दिस जर्नी वाज बेसिकली स्टार्टेड एंड देयर आर वेरी मच, बोल सकते हैं कि जो वेस्टेड फ्लावर्स था उन सबको जमा करना, दिस इज नॉट द इजी टास्क, बिकॉज कोई भी फ्लोरल वेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। फ्लावर से क्या गंदगी होगी, कोई भी ये चीज को मानने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन इस सिंपल आइडिया ने अंकित अग्रवाल का कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को, बहुत सारे लोगों को हेल्प, मतलब लोगों को ये इंस्पायर किया कि यस, वी आर बेसिकली एबल टू मैनेज द टेम्पल वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग द बेटर प्रोडक्ट टू द customers, and that is essence stick. A year and a half and countless hours, काफी साल लगे, काफी मतलब 1-2 साल लगे, काफी घंटे लगे और लैबोरेटरी में, और तब जाकर फ्लावर को साइकिल किया गया और उसको एसेंस स्टिक में बनाया गया, क्राफ्ट किया गया। और मिशन क्या था? मिशन था रिवर गंगा को बेसिकली साफ रखना, प्रिजर्व करना, और साथ साथ में वैसे लोगों को जिनको जॉब की काफी जरूरत है अपने लाइवलीहुड के लिए, उनको जॉब प्रोवाइड करना। और इसके लिए इन्होंने विमेन की टीम रेडी की, और जो विमेन टीम थी वो ज्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी से थी, यानी कि शेड्यूल कास्ट हैं, जिनको लोग डिस्क्रिमिनेशन की नजर से देखते हैं। उनको अंकित अग्रवाल ने अपने इस मिशन में शामिल कर लिया और उनको जॉब दिया, ठीक है। तो उसके बाद मतलब एक तरीके से दे बिलीव ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट। फूल जो है, इनका ये पूरा टीम है, देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी women who are working, and फूल जो है that have grown much more than the 2 people it started, but our spirit of adventure the begin at the ghats of Ganga flourish every day, and every time they are basically collecting the flowers from the ghat of Ganga, ठीक है। And there is a one statement which is used by the CEO of Unilever in 2017 that I am impressed by your Fool enterprises and keep, which is perfect example of circular economy and keep setting the standard for others to follow. So it is a one of the inspiration for the other companies that how they can utilize or recycle the product, which is basically becoming the waste and which is basically making the water or any the ecological system dirty या ecology environment dirty. So फूल जो है, ये जो स्टार्ट हुआ कंपनी में, ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। इट वाज फाउंडेड इन 2017 और लगभग 11,060 मेट्रिक टन
टेम्पल के वेस्ट को रिसाइकिल अब तक कर लिया गया है, यानी कि फ्लावर्स को रिसाइकिल कर लिया गया है। ठीक है, आई गेस यहां तक सबको क्लियर हो गया। एंड अंकित अग्रवाल इज ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। ठीक है, ही इज ऑल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। सब IIT बनते हैं मेरे साथ नहीं हो। Okay. So that the IIT कानपुर से पास्ड आउट अंकित अग्रवाल हैं, IIT कानपुर के हैं, और इनके इस बिजनेस में सेलिब्रिटी ने भी फंड किया है, फंडेड मतलब हो सकता है इन्वेस्टमेंट किया है। दे आल्सो प्रोवाइडेड द फंड। एंड हु इज शी इज आलिया भट्ट, हु इन्वेस्टेड इन द कंपनी फूल। ठीक है, as well as she basically also said that for us it is a very inspiring thing, matlab she also motivated Ankit Agarwal for this initiative। ठीक है, and abhi jo company hai that is in the profitable, and there are more than 79 workers who are doing work in this company। okay, as well as they are basically, this is a one of the bol sakte hain टेक्निक फॉर सॉल्विंग द टेम्पल वेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अलावा इनका अभी हम बात करें, इनके बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनके बच्चे अब स्कूल जाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे हैव नाउ इनकम, दे हैव सोर्स ऑफ इनकम इन शॉर्ट। ठीक है, सो Alia Bhatt, what she said, if I'm telling about her, she said that Fool Essence stands out for its fine natural fragrance and the amazing packaging. So the packaging and the strategy the company is using, that is very attractive. The essence stick is made up of natural thing, so it is not harming the people as well. That is not affecting our breathing system because it is made up of the natural thing. So somehow it is basically contributing to the multiple thing, clearing the river, providing the better quality of the essence stick, economical prices, as well as it is provided employment to the women, ठीक है, in India. And अभी इसकी अगर हम बात करें तो ठीक है, I guess this is more than enough. And they have millions, so their turnover is in million. So I guess this point, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, फूल कंपनी के बारे में, fool.com के बारे में क्लियर हो गई सबको। And their tagline is they are using, पहले इनका इसका नाम इन्होंने रखा था help us green, help us green, मतलब फॉर्मर इसका जो नाम था that is help us green, and now it is known as fool.com। ठीक है, so they are the Fool वर्मी कंपोस्ट, मतलब किस तरीके से फ्लावर को कंपोस्ट करके इसको एसेंस स्टिक में कन्वर्ट किया जाता है। It took the so many years to experiment on this, and finally this idea is generated. So the danger of the temple flowers realize, basically make the Ankit Agarwal realize that how we can do something innovative to minimize this। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? And even they are selling their product via Amazon, so you can see in Amazon the Fool essence sticks, you are able to see in that। Anyone have any doubt? सबको समझ में आ गया? जितना पॉइंट आया सबको क्लियर हुआ? 11,060 टन फ्लावर्स रिसाइकल हुआ है, 73 वुमेन है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रही है, 11 टन पेस्टिसाइड को रिमूव किया गया है फ्लावर से, और 19 चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल जाना उन्होंने शुरू कर दिया। सो द वे दे आर बेसिकली मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर यूजिंग द ई-कॉमर्स साइट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, स्पेशली Amazon, as well as they are using a very beautiful and colorful packaging for their essence stick. I can show you that. Just wait for a sec, I'm showing it on the screen. Okay, so you all are able to see this, that how they are basically selling their product. देख रहे हो, the color, the packaging they are using, you can see this, you can see this, that how they are basically selling the product. This packet you can see, देख रहे हो किस तरीके से इन्होंने पैकेजिंग यूज किया। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दे आर यूजिंग, द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द अगरबत्ती पैकेट, मतलब पैकेट को बहुत अच्छा ब्यूटीफुली दे डिजाइन।
Anyone have any doubt? And they are, मतलब अभी अगर मैं बोलूँ तो they basically saves 125 kg of flowers for being dumped in the Ganga. 125 किलो लगभग हर महीने इनका ये रेशियो रहता है. Okay, so anyone have any doubt in this? This is a sacred, ethical, and the human act which is done by the Ankit Agarwal. By becoming an entrepreneur, he basically contributed to the society as well. So anyone have any questions to ask? कोई question है जो पूछना चाहते हैं आप लोग? Anyone? No ma'am, no question. लेकिन सब आईआईटी का ही था स्टूडेंट्स में. Not like that. The entrepreneurs की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी तो यही तो होती है कि they are risk taker. They are not thinking that they will become failure or what will be happen with their business, but they think that once I am going to provide the better product, once I am going to provide the better services to the consumers, I am sure that I will get success, right? So this attitude, this passion, this dedication, this devotion, this is required. And this will done only when your mind is very much set toward starting the business. And the entrepreneurs are like that only. They are never thinking that they will going to get lost in the future or lost in the business, but they want to contribute to the society as well as they are basically believing on them. अपने आप पे उनको भरोसा होता है. तो अपने जो विदेशी जो जैकब जो था, he is his foreign friends, मतलब foreign से वो आया था and they were sat in that area. गंगा नदी के किनारे, they talk about the problem which everyone is facing and how it is basically deteriorating the quality of the water as well as that is deteriorating the health of the people. अगर किसी गंदा पानी को पियोगे तो क्या होगा? इफेक्ट करेगा हम लोगों को भी. So this is solution for so many things, right? This fool is the solution for so many things. And they are making अगरबत्ती, धूप बत्ती, ठीक है? और इन सब चीजों से they started this business. So I guess this is clear to everyone about the Ankit Agarwal, how he became entrepreneur and what motivated him to become entrepreneur, the problem which is faced by the society, the problem of the deteriorating quality of Ganga Nadi and the problem of the discharging the material, the waste material from the factories, from the temple as well, and how it is affecting the other people. So the problem is something which give him opportunity to start this innovative, बोल सकते हैं innovative business. Clear? Clear? Yes ma'am. Yes So ma'am. in the next class, we are going to discuss about the Mamaearth, and Mamaearth, it was started in 2016 by a couple. So why they started, let me elaborate it, some points I am going to elaborate it in. That Mamaearth is one of the cosmetic leading company. अभी 2016 में इसकी शुरुआत हुई and it is started by the couple when they are expecting their child. ठीक है? जब वो then they understand that the chemicals are going to harm their child, मतलब उनके बच्चे को chemicals बहुत बुरी तरीके से harm कर सकता है और इसी के लिए उन्होंने US से बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सपोर्ट वहां से इंपोर्ट करवाया इंडिया में ताकि वो प्रोडक्ट्स को यूज करें, बट वो बहुत इनकन्वीनियंट था, बहुत कॉस्टली था, जिसने उनको इनिशिएट किया कि वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बने जो कि प्रोडक्ट बिल्कुल हार्मलेस प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करे, कॉस्मेटिक्स आइटम प्रोवाइड कर सके. ठीक है, सो इनकी कहानी यहां से शुरू होती है, ठीक है, मामाअर्थ की. तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. किसी को कुछ पूछना है? Anyone have any doubt? Okay, so see you all in the next class. No, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you ma'am. Okay, see you all in the next